Like to give a short introduction of myself first. Yes, this is Jayashree Sultania from B Farm first year, and I'll be your host for today's session. Let us start our session with some positivity. I'll be sharing a small quote with you all. पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता है। पेड़ की शाखा पे बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपनी पंखों पर भरोसा करता है। With this positivity, let us move ahead. As you already know, what today's session is all about. It's about BMC, that is Business Model Canvas. The BMC is a strategic management tool or template to quickly identify and easily define and communicate a business idea or concept. It offers a visual chart with elements and products, value propositions, infrastructure, customers, and finances. It is a one-page document which works through the fundamental elements of a business or a product, structuring an idea in a coherent way. This was all what I knew. Our speaker of the session will today give us a true insight of BMC. Now, without further ado, I would like to introduce the speaker of today's session. Yes, he is none other than Dr. Vineet Kumar Jha, sir. There's so much to say about sir. He has more than 20 years of experience spanning media. He has more spanning media industries, academic, and research. He is now studying the wide perspectives of startup and entrepreneurship patterns. He has worked as sub-editor and subject expert for Encyclopedia in Mass Communication in Hindi Central Institute of Hindi Language, Agra. He is currently working as assistant professor in journalism and mass communication, IMT College of Management, Greater Noida. He is also the convener of IIC of IMT College of Management, Greater Noida. He has also worked as assistant professor in journalism and mass communication at Sharda University, Greater Noida. So, sir, now I would request you to grace the session with your precious knowledge and words of wisdom. Thank you. Okay, thank you, Jayashree. Now, I today I talk with you about business model canvas. What are the business model or how this is done? Because all of us are here for something else. How this work business model how this work. तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मॉडल है जैसा कि आपने कहा कि जैसे ने कहा कि कैसे ये काम करता है ये हमें देखना पड़ेगा और कैसे एक पेज में हम जो अपनी पॉइंट है वो कैसे हम एक पॉइंट में हम बता सकते हैं एक पेज में हम बता सकते हैं सो दिस इज द मॉडल just 1 minute I am just sharing with you the PPT for this. Is this is visible? Yes, Is sir. this visible? Okay. This is a business model canvas. Uh, Now, first we know about business, about the business. The business three traits of successful entrepreneur. First, do not focus on product innovation alone. Second point, do not copy an existing business model. And third, willing to take risk and experiment with their business. तो हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं बिजनेस मॉडल शुरू करते हैं बिजनेस काम शुरू करते हैं सबसे पहले होना चाहिए कि कैसे ये प्रोडक्ट इनोवेशन है अकेले और कभी अकेले दम पे नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जब जैसे फेसबुक का हम यदि लें एग्जांपल तो फेसबुक बेस्ट एग्जांपल है कि जहाँ पे 4 फ्रेंड मिलकर ने काम किया और आज देखो कि हम लोग हर कोई मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं लेकिन उसके पीछे और भी लोग होते हैं कोई भी ऐसा सक्सेसफुल जो इनोवेशन है चाहे प्रोडक्ट है बिजनेस है कोई एक व्यक्ति नहीं होता एक आईना जरूर होता है लेकिन उसके पीछे और भी लोग होते हैं तो हमें
फोकस करना चाहिए कि किस और ग्रुप के साथ। डू नॉट कॉपी एन एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। हमें कभी भी कोई जो बिजनेस मॉडल अभी चल रहा है उसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम उसको देख रहे हैं, जैसे मान लो अमेजन है, तो आप देखो कि फ्लिपकार्ट में कुछ अंतर है, स्नैपडील में कुछ अंतर है, तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए जैसे कि लोग आकर्षित हों। थर्ड पॉइंट है विलिंग टू टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट विथ देयर बिजनेस। और हमें रिस्क लेने का होना चाहिए कि हम रिस्क ले सकें और हमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट करें। आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे अभी इन दिस कोरोना पीरियड जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस लोग कर रहे थे उसको कैसे चेंज किया और रातों रात उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया। जैसे तो आप लोग ये प्राइवेट तो छोड़ दे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जैसे कि जो कल तक केवल इलेक्ट्रिक का काम करते, जैसे सेल का काम हुआ, उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और पूरी सप्लाई किया। वी हैव वी हैव हैबिट टू टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट कि कैसे करें। अब एग्जांपल कि व्हाट इज बिजनेस मॉडल। तो ए बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स द रेशनल ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू। कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, डिलीवर करता है और कैप्चर वैल्यू करता है, यही हमारा बिजनेस है। यानी बिजनेस मॉडल वो है जो बताता है कि आप कैसे हमारा संस्थान चलेगा, कैसे हमारा संस्थान डिलीवर करेगा चीज़ों को। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि समोसे का। तो समोसा हमने बनाया, वो क्रिएट किया, उसको फिर हमने फूड स्टॉल पे भेजा, डिलीवर किया, और फिर जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाई हुए, कैप्चर किया। यानी लोगों को हमने कैप्चर किया कि लोग उसको खाएं और उसको बताएं, और फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये फिर जो है हम एक अच्छे फायदे में रहते हैं। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे बीएनसी मॉडल का कि हमने और इस पर कैसे काम करें। जैसे मान लो हमने समोसा बनाया या कुछ और चीजें बना ली, तो हमने उसको कैसे देखा, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाएं। और ये तो यही है बिजनेस मॉडल। कल तक क्या होता था, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आती थी वो कल तक ये होता था कि हम अलग अलग पन्नों में करते थे कि हमारे ग्राहक कौन होंगे, हमारे जो है हम कहाँ से मटेरियल लाएंगे, और हमारे फंडिंग कौन देगा, हमारे बिजनेस हम शुरू करते हैं उसके लिए फंडिंग कहाँ से मिलेगा, हमारे कौन किसको हम अप्रोच करें, फिर हम जो है किसके लिए तैयार करें, कौन हमारा होगा। जैसे कि मान लो मैं लॉलीपॉप बनाने का एक फैक्ट्री बनाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे खाएंगे, बड़े नहीं खाएंगे। आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत सारे ऐसे कुछ प्लांटेशन करते हैं तो जो अलग अलग लोगों के लिए वो है। जैसे च्यवनप्राश, यदि हम च्यवनप्राश की बात करें तो वो बुजुर्ग खाते हैं, लेकिन उसके बाद बॉर्नवीटा बच्चे खाएंगे। तो एक हर एक का ट्रेंड होता है कि हमारे हु आर आवर कस्टमर, हमारे ग्राहक कौन है, हम उनको देखें। दूसरा पॉइंट जो है कि कस्टमर तक तो पहुंच गए, लेकिन हम वहाँ पे सेटिस्फाई दे सकते हैं। जैसे आप लोग कई बार रेस्टोरेंट जाते होंगे, कई नए रेस्टोरेंट देखा, आप चले गए, आपने पहले दिन जो आपने खाना खाया आपने सोचा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, और या फिर ये बहुत अच्छा है, इसी के थोड़ा सस्ता भी है और अच्छा है और टाइमली देता है, तो आप दूसरे दिन भी आते हैं। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे कस्टमर आएंगे। यदि मैंने बर्गर का कर लिया तो आपको पता है कि जो आप लोग हैं स्टूडेंट, वो बर्गर खाने आएंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स कभी कभार खाएंगे, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है कि जिद करें खा लें, लेकिन वो लोग अवॉइड करें। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के हमें जो है लोग हमारे ग्राहक हैं। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल में है। अब आते हैं बिजनेस मॉडल कैनवास का, हमने डिफिनेशन बताया था, अब है क्या है सिंपल से लैंग्वेज में। The business model canvas is likely to be the most well-known and used business modeling system in the world. This tool was developed by Alexander Osterwalder. इसको एलेक्जेंडर ऑस्टरवेल्डर ने डेवलप किया था इस टूल को, और दैट इज अपने बुक में उन्होंने मेंशन किया है। बुक का नाम है बिजनेस मॉडल जनरेशन। तो बिजनेस मॉडल जनरेशन की जो बुक है उसमें एलेक्जेंडर ऑस्टरवेल्डर ने बताया कि कैसे ये बिजनेस मॉडल काम करे। और ये कुछ भी नहीं है, देखो आपको जो मैंने बताया वही है। इट इज यूजर फ्रेंडली एंड एवरीथिंग दैट हैड बीन प्रीवियसली प्रपोज्ड, जो हमने अभी तय किया। जैसे मान लो आज हमारा आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और यू हैव डिसाइड टू हम स्टार्ट करें कोई बिजनेस, तो सिंपल सा हम उसमें क्या क्या करेंगे बस उसी का एक डेटा है। बिकॉज इट डिस्पेंस पेजेज एंड पेजेज ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अदर हैंड्स फोकस द अटेंशन ऑफ इंटरेस्टेड इन सिंगल कैनवास। यानी एक पेज में आपको एक पेज में बनाना है कि कैसे। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं, आप लोग जितने स्टूडेंट है मैं पूछूं कि आप लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो क्या आपकी प्लानिंग है, तो आपका सवाल क्या होगा, जरा सोचो क्या होगा सवाल। यदि मैं आप लोग के पास आऊं फिजिकली और आपसे पूछूं कि आप एक बिजनेस प्लान बताओ, तो आप बोलोगे सर मैं क्या करूं, जरा आप ही कुछ आइडिया दो। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर ये प्लान तो है, मैं अभी
जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मैं